Viewers, welcome back to English Only Zone. Today we are starting with another topic of English grammar, that is verbs. Now, a question may arise in your mind that what is a verb? Can anyone tell what is a verb? Okay, let's see some pictures first before reading the definition of verb. We can see in the first picture that two students are talking to each other. In the second picture, we can see that few students are running. In the third picture, here Tom is sleeping. And in the fourth picture, a girl is eating. So all these words, talking, running, sleeping, eating, all these action verbs are called verbs. जो भी हम कोई काम करते हैं, उस काम को हम verb की help से ही बताते हैं. Now, let us move on to the definition. Verbs are the words that describe actions or state of being. हम जो काम कर रहे हैं, जो हम एक्शन कर रहे हैं, वो वर्ब की हेल्प से पता चलता है, या फिर हम किस स्टेट में हैं वो भी हमें वर्ब से ही पता चलता है, हम किस कंडीशन में हैं. फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग, थिंकिंग, डांसिंग, jumping, etc. are all verbs. Now, let us see some examples so that we may understand clearly the examples of verbs. In the first sentence, we have I went to Delhi yesterday. Now, can you tell what is the verb in this sentence? I went to Delhi yesterday. Here, the verb is went. अब went कैसे है verb? क्योंकि went go की past tense है और go से हमें पता चल रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है. जाना मतलब कोई एक्शन होना, तो went is the verb here. Now, let us see the second sentence. She gave me a big bouquet of flowers. Now, what is the verb here? Gave. Gave is the past tense of give. देना, किसी चीज को देना किसी पर्सन को, तो देना कोई एक्शन हो रहा है ना, तो here gave is the verb. Let us see the third sentence. I am typing for my project. Here, what is the verb? What is the action being done? The action being done is typing. So, all these words are verbs because in these words, some action is taking place. Okay? Now, let us see the fourth sentence. Mohit heard the child. Now, what is the verb here? Heard is the verb, because by hurting also we are doing some action. So by these four sentences, I hope the concept of verb is clear to you. कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, हम जिस कंडीशन में हैं, वो हमें वर्ब की हेल्प से ही पता चलता है. Now let us move on to the next topic, that is types of verbs. Now how many types of verbs are there? You will be surprised to know that there are 11 types of verbs. 11 types. Yes, all these 11 types of verbs are further categorized into subcategories, जिनके बारे में हम अपनी सेकेंड वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे. सेकेंड वीडियो इसलिए क्योंकि ऑफ कोर्स हम 11 टाइप्स ऑफ वर्ब्स एक ही वीडियो में नहीं पढ़ पाएंगे. तो आई विल बी मेकिंग 2 videos ऑन दिस टॉपिक ऑन टाइप्स ऑफ वर्ब्स. सो इन दिस वीडियो वी विल बी स्टडिंग starting 3-4 types, and in the next video we will be studying the leftover types of verbs, and also we will study the categories in those verbs are categorized. Okay, now let us see which are these 11 types of verbs. Action verbs, stative verbs, helping verbs, these are also known as auxiliary verbs. Linking verbs, transitive verbs, intransitive verbs, regular verbs, irregular verbs, modal verbs, जिनको हम modals भी बोलते हैं, phrasal verbs and infinitives. So all these types of verbs are there. Now let us move on to the first type of verb, that is action verbs. अब ये action verbs क्या होती हैं? नेम से ही पता चल रहा है कि कोई एक्शन होता होगा, तभी हम उसको एक्शन वर्ब कह रहे हैं. हमने अभी तक जितने भी सेंटेंसेस पढ़े हैं, वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, तो या हर्टिंग, ये सब एक्शंस ही तो हो रहे हैं. तो लेट अस स्टडी द डेफिनेशन ऑफ एक्शन वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स स्पेसिफाई द एक्शंस. ये एक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं, एक्शंस के बारे में ही बताते हैं.
अब वो एक्शन फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम फिजिकली एक्शन करें, हम मेंटली भी तो कुछ ना कुछ काम करते हैं, थिंकिंग, लर्निंग, मेमोराइजिंग, है ना। तो ये सब हमारे मेंटल एक्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रन, जंप, ईट, थिंक, बिलीव इज ऑल्सो अ मेंटल एक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब इज स्टेटिव वर्ब्स। अब ये स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं? स्टेटिव वर्ब्स रेफर टू द स्टेट ऑफ बीइंग और कंडीशन। हम जिस कंडीशन में हैं या हम जिस स्टेट में हैं, यहाँ पर स्टेट का मतलब यूपी और बिहार और उत्तराखंड, राजस्थान, ये वाली स्टेट्स नहीं है। यहाँ पर हमारी कंडीशन का से मतलब है स्टेट का। तो स्टेटिव वर्ब्स हमारी कंडीशन को रेफर करती हैं। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ दिस स्टेटिव वर्ब। वांट, हैव, ओन, लाइक। इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। देखो, वांट, आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें कोई एक्शन तो नहीं कर रही हूँ ना मैं। आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट इज माई कंडीशन। आई एम थर्स्टी, दैट्स व्हाई आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। कैन आई प्लीज हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? अगेन हैव मीन्स अब यहाँ पर भी मैं कोई एक्शन नहीं कर रही हूँ। अगेन आई एम आस्किंग फॉर समथिंग। ओन, आई ओ दिस कार, आई ओ दिस हाउस। अब ओन का मतलब मैं इसकी ओनर हूँ। आई ओन दिस हाउस। ओन दिस हाउस का मतलब क्या हो गया कि मैं इस घर की मालिक हूँ। अब ओन में मैं कोई एक्शन नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल इट इज़ अ वर्ब। अब यहाँ पर ये कंडीशन बता रहा है, स्टेट बता रहा है मेरी। नेक्स्ट इज लाइक। आई लाइक दिस फ्लावर। अब लाइक में मैं फिर से कोई एक्शन नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट सेइंग आई लाइक दिस फ्लावर। तो जब किसी वर्ब से एक्शन नहीं होता हो लेकिन फिर भी वो वर्ब यूज की जाती है, तो वो वर्ब हमारी स्टेटिव वर्ब होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एक्शन वर्ब्स एंड स्टेटिव वर्ब्स। ओके, अब जो हमने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी थी कि डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, अब वो डेफिनेशन हमारी 100% सही नहीं है। वो हमने बचपन में इजी होने की वजह से लर्न करी थी कि डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स ही वर्ब्स नहीं होते हैं। इसके अलावा भी बहुत बड़ी लिस्ट होती है वर्ब्स की, वो हमने अभी देख ही ली। देयर आर 11 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। नाउ द नेक्स्ट टाइप, थर्ड टाइप ऑफ वर्ब इज लिंकिंग वर्ब्स। अब लिंकिंग नेम से ही पता चल रहा है कि ये किसी चीज़ को लिंक कर रहे होंगे, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ रहे होंगे। नाउ लेट अस स्टडी द डेफिनेशन। दीज वर्ब्स फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन द सब्जेक्ट एंड अनदर वर्ड एज ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा या जो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा, उन दोनों के बीच में वो लिंक बनाते हैं। और इस ऑब्जेक्ट से, ये जो हम कॉम्प्लीमेंट या ये जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, इससे सब्जेक्ट को एक न्यू नेम मिल जाता है। अब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, लेकिन जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। सो लेट्स रीड द एग्जाम्पल्स। ही इज एन इंजीनियर। यहाँ पर हम ही के बारे में ही बता रहे हैं ना, यहाँ पर हम ही के बारे में बता रहे हैं कि वो इंजीनियर है, लेकिन ही और इंजीनियर के बीच में कौन सी वर्ब यूज करी गई है? इज इज द वर्ब यूज्ड है। तो ही और एन इंजीनियर का लिंक आपस में किसने करा? इज ने लिंक करा है। तो देयरफॉर इज द हेल्पिंग वर्ब हियर और द लिंकिंग वर्ब हियर, नॉट हेल्पिंग वर्ब, इट इज द लिंकिंग वर्ब हियर। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द रूम स्मेल्स ऑफुल। यहाँ पर हम रूम के बारे में बता रहे हैं कि वो ऑफुल है। अब ऑफुल क्या है उसमें? रूम में क्या ऑफुल है, क्या खराब है, क्या अच्छा नहीं लगा रूम में? उसकी स्मेल। तो स्मेल इज अगेन द लिंकिंग वर्ब हियर। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट केक टेस्टेड गुड। इस सेंटेंस में केक और गुड के बीच में हमारा आपस में कुछ लिंक किया जा रहा है। द केक और गुड, इन दोनों को आपस में मिलाने वाला वर्ड कौन सा है? टेस्टेड। टेस्टेड ही तो केक के बारे में बता रहा है कि वो गुड था, कि केक का टेस्ट अच्छा था। तो अगेन टेस्टेड इज द लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स कैन बी सिंपल लिंकिंग वर्ब्स एंड दे कैन ऑल्सो बेस्ड ऑन आवर सेंस। लिंकिंग वर्ब्स हमारी सेंस पर भी बेस्ड होती हैं। अब आपको अपने सेंस ऑर्गन्स तो पता ही हैं, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। तो हम इन सेंस ऑर्गन से जो भी कुछ सेंस कर पाते हैं, वो वर्ड्स, वो सेंसिंग वर्ड्स हमारे लिंकिंग वर्ब्स में आते हैं। आई होप दिस इज क्लियर।
Okay, fine. Now let's move on to the next type of verb, that is helping verbs. अब ये helping verbs क्या है? Helping verbs अगेन नेम से ही क्लियर हो रहा है, हेल्प करती होंगी. किसकी हेल्प करती होंगी? लेट अस रीड. दीज वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस टू कंप्लीट इट्स मीनिंग अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड सब्जेक्ट. अब हम ये जानते हैं कि हम एक बात को अलग अलग टेंस में और अलग अलग सब्जेक्ट के साथ कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ. मैं बाजार जाती हूँ. आई गो टू मार्केट. अब अगर मेरे साथ कोई और पर्सन हुआ तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? वी गो टू मार्केट. अगर मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ कि आप बाजार जाते हो तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? यू गो टू मार्केट. तो आई गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट. कोई और थर्ड पर्सन मार्केट जा रहा है तो शी गोज टू मार्केट. और अगर हम मार्केट जाया करते थे, वी वेंट टू मार्केट या वी यूज टू गो टू मार्केट, तो वो हमारा पास्ट टेंस में हो गया. तो हम एक ही बात को अलग अलग सब्जेक्ट और अलग अलग टेंस के साथ बोल सकते हैं. तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, ये वर्ब्स हमारे टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे वर्ब मेन वर्ब को कंप्लीट करने में हेल्प करती है. जैसे हमने टेंसेस में रूल्स भी पढ़े हैं कि जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसके लिए हम इज एम आर ऐड करते हैं, हेल्पिंग वर्ब. पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज वर ऐड होता है. प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ और हैव ऐड होता है. पास्ट परफेक्ट है तो हैड ऐड होता है. इसी तरह अलग अलग टेंसेस में हम अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स ऐड करते हैं. तो दीज आर दोज हेल्पिंग वर्ब्स ओनली. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज दे हैव गॉन टू मार्केट. दिस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो हैव इज द हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि वो गॉन का मीनिंग कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम डूइंग माई होमवर्क. यहाँ पर आई और डूइंग को लिंक करने में की हेल्प करने के लिए हमने यहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करी है? एम. तो एम इज द हेल्पिंग वर्ब है. सिया वॉज जंपिंग ऑन हर बेड. सिया जंप कर रही थी अपने बेड पर. तो कर रही थी के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? वॉज. तो हेल्पिंग वर्ब्स हमारी मेन वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं. जंपिंग से हमें पता चल गया वो कूद रही थी. अब थी या है, कूद रही थी या कूद रही है, दोनों में डिफरेंस होगा ना. और वो डिफरेंस किससे क्लियर होगा? हमारी हेल्पिंग वर्ब से. अगर हम इज लगाएंगे तो कूद रही है हो जाएगा, और अगर हम वॉज लगा रहे हैं तो कूद रही थी हो गया. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टाइप of the verb which we are going to study today is modal verb. Now what are modal verbs or modals? Let us study. Modal verbs express possibility, necessity, ability या permission. ये हमारी possibility express करते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत necessity express करते हैं, ability किसी काम को कर सकने में सक्षम है, या permission लेना, किसी से आज्ञा लेना भी express करते हैं. Okay? Now, what are these types of verbs? What are the examples of modals? Should, must, need, can, shall, would. Should का मतलब होता है चाहिए. Must, अगर हम कोई किसी बात के लिए बहुत सर्टेन होते हैं तब भी हम must यूज़ करते हैं. उसका भी हिंदी में मतलब चाहिए होता है. Should में हम सजेशन देते हैं. Must में हम नेसेसिटी बताते हैं. Need, ज़रूरत. Can, मैं ये काम कर सकता हूँ, एबिलिटी बताते हैं. शेल और वुड परमिशन या फिर रिक्वेस्ट भी बताते हैं. ओके, सो दिस इज ऑल विच वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. रेस्ट टाइप ऑफ वर्ब्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप दीज वर्ड्स आर क्लियर टू यू. अगर आपको किसी भी वर्ब में किसी भी या फिर किसी और टॉपिक में कुछ भी डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊं, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और प्लीज़ अपनी ये जो वीडियो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो दैट दे मे ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू. एंड इफ़ यू हैव लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ प्रेस ऑन द लाइक बटन and subscribe to the channel if not yet subscribed. Thank you.